you had people coming across performing here Yes, from yes. Pakistan. वो रुक गया. When political differences are not that good, then first they come here, then they have to report in the police station. That's very difficult job for us. वो जो distances हैं वो बढ़ जाते हैं, वो फिर आना कम हो गए. कपिल शर्मा कुछ दिन पहले हमें पता भी नहीं था, रिहर्सल कर रहे थे और पीछे से आके वो बैठ के बीच में दिन याद करने लगे. भारती ने कोई 100 के ऊपर शोज किए उसमें, एंड शी इज़ वेरी क्रिएटिव एक्टर. नाउ ऑन सिल्वर जुबली कपिल एंड भारती ऑल दे मेड ए प्रोग्राम टू कम हियर. अगर परफॉर्मर को ये पता हो कि जो उनकी ऑडियंस है दे आर नॉट पेइंग फॉर हिज एक्टिंग, then he can't be that serious. Every leader is having tail. क्यों? जितने लंबे ज्यादा लोग लग जाते उतनी लंबी पूंछ हो जाती है. द विनर इज जो सुहाने सपने बेटर दिखा सकता है. ये नहीं है कि हु इज कॉम्पिटेंट. जो अंग्रेज दरारे करके गए हैं अभी तक हम उनको बंद ही नहीं कर सके अच्छी तरह. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Amritsar in the state of Punjab. Punjab has come into sharp focus for quite some time now because of many issues which are not really positive in nature. The Amritpal issue, of course, everybody knows. But besides that, there is a rising sentiment that the issue of Khalistan might just come up all over again. Violent secessionism might find echoes in the state of Punjab. The other thing which has come into focus is about Punjabi youth who are migrating in hundreds of thousands, alarming numbers, who are going abroad. Now, there has been a trend for quite some time of Punjabi youth wanting to migrate abroad. But this alarming number of youth who are going is something which even the Chief Minister of the state has spoken about. Today's guest will speak about this and about the cultural ethos of the city of Amritsar, where this episode is being filmed. Brar Sahab, thank you so much for being part of this show. हमारी team जो है, we are very happy that you are here to tell our viewers and our listeners. Mr. Brar had a debilitating attack of COVID in the second wave and he's recovered from that, but there are side effects. So there are times where he will hesitate in remembering some issues because it's had an impact on him. But, he's somebody who has lived in the city. He knows Amritsar so well. So there are many questions that I will ask him about Amritsar, not just his forte, which is theatre. So let's go on to this conversation, Brar Sahab. First of all, I would like thank you for calling me here, for giving me this opportunity. Thank you, sir. आपने मुझे ये मौका दिया जी. और मैं अपना जो भी है जितना सा है उसके पूरा सिंसियरली अबाउट दिस अमृतसर के बारे में, थिएटर के बारे में या क्या है ये मैं आपको बताऊंगा सर. ब्रार साहब, पहले आपकी जर्नी के साथ शुरू करते हैं कि आप थिएटर में कब आए. आप इस शहर के रहने वाले हैं, यहीं के बशिंदे हैं, तो अमृतसर के बारे में कुछ हमें बताएं और बताएं कि कैसे आप थिएटर में आए और थिएटर का रोल क्या है इस शहर में. एक्चुअली मैं तो जो बिलोंग करता हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली को, और उनके जो भी यूथ होते हैं उनको नौकरी के लिए तैयार किया जाता है. इसीलिए मुझे यही जब से छोटे बच्चे ही थे तो हमें ये बोला गया था कि आपने बड़े होकर इंजीनियर बनना. तो वो जो है वो उसके लिए तैयार थे हम. इसलिए मैंने तो इंजीनियरिंग की है पहले, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. इन 1968 में मैंने कंप्लीट किया उसको. तो उसके बाद जॉब के लिए जो है, वैसे तो स्टडीज़ में तो ठीक ठाक था, इवन माय इंटरेस्ट फॉर दिस टेक्निकल जॉब्स जो वो बहुत अच्छी थी. वो टायर्स भी छोटे जब मिलते थे उसको पहले तोड़ के देखते थे खेलने से ज़्यादा. तो जब ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इसका purpose was my interest for this subject. Actually, I love this technical side. अच्छा, टेक्निकल साइड. जी. बाद में जब कंप्लीट कर ली तो जो कॉलेज टाइम से बाहर, कॉलेज टाइम तो हम थिएटर करते थे वहाँ कॉलेज टाइम में. वो तो शौकिया थिएटर था कि भाई कंपटीशन के लिए तैयार किया. वो आई स्टिल रिमेंबर कि वो कैसे कॉलेज डेज़ के ऊपर वो थिएटर करते थे एंड दोज वर वेरी सक्सेसफुल. आफ्टर कॉलेज टाइम फिर तो जॉब के लिए होता है.
पर जॉब के लिए जो है आपको यू फाइंड ए डिफरेंट वर्ल्ड, एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पे आपको सिफारिश चाहिए, आपके इंटरेस्ट की कोई बात नहीं, आपके जो रैंकिंग की कोई बात नहीं है, आपका ये है कि आपके पास पैसा है देने के लिए, ये सच थिंग्स। जब इनको फेस किया तो देन आई वाज वेरी मच अपसेट। यहाँ अमृतसर में माय फादर ही वाज सर्विंग हियर इन अमृतसर, तो अमृतसर में मुझे आया तो यहाँ पे एक थिएटर चलता था अमृतसर नाटक कला केंद्र, सरदार गुरशरण सिंह वो चला रहे थे उसको। तो मुझे पता चला कि ऐसे आई वाज अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग दोज डेज, इधर उधर भटक रहा था जॉब के लिए। तो उनके पास गया तो उनके देखा वो थिएटर कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या है, मैंने क्या मुझे भी मौका दे दीजिए। वो बोलते कि ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कैसे क्या है आपका पर्पस। मैंने पर्पस तो शौक के लिए जस्ट फॉर पंजाबी लैंग्वेज में, पंजाबी यस पंजाबी लैंग्वेज इन पंजाबी लैंग्वेज जी जी हाँ जी। वो मैं क्या दिस इज माय हॉबी पैशन जी। तो पर उस आप किस टाइम की बात कर रहे हैं? 1960s की? 68 तो उस वक्त थिएटर यहाँ पर वाइब्रेंट था, यहाँ पे अमृतसर में, पंजाब में? बहुत कम था बहुत कम था। पंजाब सिटी में, ये अमृतसर सिटी में तो हार्डली कभी कोई थिएटर होता था। ये जो अमृतसर नाटक कला केंद्र तैयार करते थे, ये ज़्यादातर ये जो थिएटर था ये विलेजेस में होता था जी जी। यहाँ पे विलेजेस में करते थे। जब उनके पास जब मैं आया तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने बतला कि मैं तो शौक के लिए करता। वो कहते नहीं थिएटर आप इसके इट्स ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म, इसको आप और पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उस टाइम मुझे जॉब मिल गई एक फाउंड्री में, वहाँ कास्टिंग की जॉब करते, रेलवे स्लीपर्स बनाते थे और साइड में थिएटर होता था। थिएटर तो अभी शुरू ही क्या हुआ, वो जॉब भी बड़ी मुश्किल से मिली। थिएटर को कभी एक प्रोफेशन के तौर पर नहीं देखा जाता था। नॉट एट ऑल, नॉट इवन इन द 60s। नॉट इन द 60s। और उस वक्त कभी सोचा कि थिएटर से आप फिल्मों में चले जाएंगे? नहीं जी थे वो तो मेरा माई purpose was that mechanical engineering and my that line that technical side। वो जब मैंने वो एक फैक्ट्री में काम शुरू किया, then I realized कि ये जो वो देखा कि वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड लेबर नहीं है। या बटाला में एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे वो रेलवे स्लीपर्स बनाते थे और मुझे बहुत शौक़ था कि कुछ करके दिखाऊं उनको। तो जो लेबर थी वहाँ पे रेलवे स्लीपर्स बनाते थे, कास्ट करते थे, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, उनका बहुत जो है एक्सप्लॉयट किया जाता था उसको, लेबर को। बहुत गरीब लोग थे, कुछ कैलकाटा से वो, क्योंकि वो देवर स्पेशलिस्ट इन जॉब, वो कैलकाटा से कुछ वहाँ उन्होंने बुला रखी थी। कुछ यहाँ पे भी चेफ कटर जो टोका उसको बोलते हैं, उसको वो बनते थे। कुछ जो कास्ट आयरन पाइप्स बनते थे, ऐसी चीज़ें जो है वो उनको करते थे। लेकिन मुझे शौक़ था कि इसको करने का। देयर वाज प्रॉब्लम विद एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉईज, बिकॉज वो जो वर्कर्स थे वो दे वर नॉट सेटिस्फाइड। So, but why did you then do? I mean, I would think that this is something which is like back-breaking work, है ना? ये जो काम है वो बहुत ही मुश्किल, लाइक दिन में अगर आपका काम इतना आप इतने मसरूफ रहते हैं, तो फिर आप उसके बाद क्रिएटिव परस्यूट थिएटर वो हो सकता था। हाँ, यही तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे। लेकिन वो जो आई डिस्कस्ड विद सरदार गुरशरण सिंह, उन्होंने बोला कि आप थिएटर करना चाहते हो ना शौकिया, अब जो आपकी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर थिएटर, उनके ऊपर प्लेज लिखो। अच्छा। तो वो जो है इस सब्जेक्ट को टच किसी ने नहीं किया, बिकॉज जो भी राइटर्स हैं वो तो उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर प्ले लिखा लोहे दी पट्टी,
steel furnace in a special word cupola furnace, that is called cupola furnace. उसमें जो वर्कर्स हैं वो 250 के करीब वर्कर थे, उनका बहुत जो है जो शोषण होता था वहाँ पे, शोषण होता था. तो आई वांटेड टू हैव ए बेटर जॉब एंड प्लीज माय एम्प्लॉयर. So I told him that I can get rid of these people. I will design something. ये 250 की जगह only 20 people or 22 people will be able to do the job. He was very happy. He told me that I will give you this special perks and you do this job. Then I started doing that. And I prepared the drawings, everything. Because I was having very गुड इंटरेस्ट फॉर दैट जॉब. उनके लिए काफ़ी मुझे ड्राइंग्स बना के उसको दिन रात लगा कर तैयार किया. उसको उन ड्राइंग के ऊपर फिर जब फैब्रिकेशन उसको बनाने का काम शुरू करने लगा तो उस मालिक को बताया. उसने बहुत खुश हुआ, उसने काफ़ी इनाम भी दिया, ये भी किया. लेकिन जब मज़दूरों को वो जो लेबर थी वो स्पेशली जो कलकत्ता थे वो ऑर्गेनाइज्ड लेबर काफ़ी थी, वो जो है वो सब जो है लोग जो है वो बहुत अपसेट हो गए. वो उन्होंने देखा कि मैं तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो 20 रह गए, हम कहाँ जाएंगे. बट दे डिड, उन्होंने मेरा घेराव कर दिया वहाँ पे जो लेबर है. और उन्होंने अपने वो जो पेट के ऊपर से वो उठा के अपने शर्ट्स वगैरह और वो पीटना शुरू कर दिया कि तुमने हमें भूखा मारना, हम तुम्हें भूखा मारेंगे, यहीं मारेंगे. तो दैट आई वॉज वेरी मच अपसेट विद दैट. आई डिस्कस दैट विद सरदार गुरशरण सिंह एंड देन आई रोट दैट प्ले लोहे दी पट्टी. बस आफ्टर दैट दैट वाज वेरी सक्सेसफुल. वो जो प्ले है वो बहुत अच्छे कामयाब हुआ. उसको काफ़ी जगह खेलना हमने उसको स्टेज किया काफ़ी जगह पे और भी काफ़ी डिमांड आई. लेकिन फिर उन्होंने बोला कि आप चंडीगढ़ में कीजिए, ऐसे बाहर जाके कीजिए. वो उसमें एंटरटेनमेंट भी थी, उसके साथ वो जो उनके छोटे बच्चे कैसे मज़दूरों के काम करते हैं, उनकी जो वाइफ्स कैसे काम करती हैं, वो कैसे उसमें वो मतलब एक इंसिडेंट को लेके आपने किया ना, एक जगह को लेके, लेकिन उसका एक यूनिवर्सल अपील था. It wasn't just restricted to one foundry, one set of laborers. It had a universal appeal, है ना, कि उस वक्त जो था you were talking about a labor force. कई बार ये माना जाता है कि जो थिएटर है it used to pick up relevant issues like this. लोगों की दिक्कतें, लोगों से संबंधित revolutions की बात थी. 60s and 70s में हम we were India was grappling with that issue. So did these issues come up in all your plays? Yes. ये एक स्पेशल इंसिडेंट नहीं था, because in Batala city only there were hundreds of foundries and thousands of workers, and all that area was dependent on that foundry job. थिएटर को कहा जाता है कि many people say that youth के लिए it is very important क्योंकि it's a way of expressing your thoughts, right, through your gestures, your facial expressions, your voice modulation, and it finds expression in many ways. The reason I'm coming to this is because the entire focus of the country and even of the world to some extent is about the youth of Punjab. Yes. बहुत लोगों को फिक्र है कि यहाँ से almost 100,000 people per year youth is leaving this state for other countries. For other countries. Now, why is it that they are not able to find a voice in films, in theatre, in any kind of creative pursuit, और वो बाहर जाना चाहते हैं? क्या नौकरी के तलाश में जाते हैं? यहाँ पर क्या दिक्कत है कि एक सिस्टम नहीं बन पा रहा कि यूथ यहाँ रहना चाहता है? यहाँ पे एक तो ये है कि जैसे आपने बोला कि सब यूथ नहीं बाहर जाना चाहते. सभी यूथ जो है वो नहीं बाहर जाना चाहते. ओनली पार्ट ऑफ दैट. Otherwise, theatre is a very good opportunity.
फिल्म्स में जो है वो यूथ यहाँ से जाते हैं, इवन इन टेलीविज़न बहुत सारे अमृतसर के ये आई फील वेरी कंफर्टेबल इन टेलिंग दिस दैट जब शुरू किया हमने 98 में, तब यहाँ से हार्डली बहुत कम जाते थे। अब तो ऐसे है कि थिएटर कोई भी प्लेस जो है, अब ये जो नेशनल चैनल्स के जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कपिल शर्मा शो वगैरह, वहाँ उसमें 70-80% जो है वो नाटशाला यहाँ के गए हुए हैं, एंड दे आर अर्निंग इन लैक्स, even in crores, in almost in most of the पंजाबी मूवीज़। ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, उनके लिए सब वो बाहर नहीं जाते, वो बहुत सा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडली आपने जो बोला है कि बहुत सारे जा भी रहे हैं, इतने बड़े जा रहे हैं, उसका ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसमें थ्योरेटिकल जो पार्ट है ओनली दैट इज़ टॉट इन द इंस्टीट्यूशंस, इन द कॉलेजेस, एंड वो रियल लाइफ से जो इवन द यूनिवर्सिटीज वो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो विद इन देयर ओन बाउंड्री एरिया, वो बाहर की जॉब के लिए उनको जो क्या बोलते हैं वो हुनर जो उनको वो नहीं दे सकते, नहीं दे रहे, जो दे आर नॉट यूजफुल एज वर्कर्स। उनको एजुकेशन है, उनके पास सब कुछ है, पर बट दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटी, दे डोंट हैव स्किल। That skill is the main problem. And that's quite surprising क्योंकि अमृतसर में ही, आपके शहर में ही एजुकेशन was given so much importance, यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन आप you've been associated with youth, तो आपको लगता है कि there is an anger, there is a frustration youth में? बिल्कुल। मुझे तो, क्योंकि मैं तो एक साइड पे तो ये जो है एजुकेशन से ये पता मुझे क्या कैसे हो रहा है। सेकेंडली जो ITI यहाँ पे अमृतसर में ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एट्सेट्रा, देयर आर सो मैनी इंस्टीट्यूट्स जो टेक्निकल, दे आर सपोज टू टेल टेक्निकल, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो सिस्टम है इसमें जो उनको टीच करने वाले हैं या वो उनके इंटरेस्ट के लिए वो जॉब को जब वो निकलते हैं तो उनका कोई वर्कफोर्स मतलब जॉब मार्केट के लिए तैयार नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं तैयार होते। एक फॉर एग्जांपल देयर इज सम ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट, वो ऐसे है कि अगर वो कहीं बस में कार में जा रहा है तो वो ये उस पे पास इतना भी स्किल नहीं होगा कि उसको कोई माइनर जो है उसका सर्विस वर्क कर सके जी, तो जी। वो जो है वो एक्चुअली ऐसे लोग जो हैं इवन इंडस्ट्री में जो है जैसे फ्रॉम ग्राइंडर मैन लाइक लेथ पर्सन एंड अदर सिंपल मशीन ऑपरेटर्स एंड CNC इज समथिंग वेरी स्पेशल, तो वो उन बेचारों को दे डोंट नो अबाउट दिस थिंग। जी जी। आपने कपिल शर्मा और भारती के बारे में बात की है, तो कुछ बताएंगे अपने स्टूडेंट्स के बारे में या जिन्होंने यहाँ पे आपके थिएटर वर्कशॉप्स वगैरह में काम किया हो? बिल्कुल, भारती सिंह ने तो काफ़ी काम किया। इन्होंने हमने एक प्ले किया फर्स्ट जो है फासले, उसका जो सेंट्रल आइडिया ऑफ दैट प्ले वाज कि फासले ये मॉडर्नाइज हो गए हैं, हमारे पास ये मोबाइल्स आ गए, सब कुछ है। अब जो डिस्टेंस फिज़िकल जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब तो सुबह ब्रेकफास्ट आप यहाँ इंडिया में कर सकते हैं, लंच आप UK में कर सकते हैं, डिनर US में कर सकते हैं, फासला कोई रहा नहीं, देयर इज़ नो डिस्टेंस। बट ऑन द अदर साइड जो हमारे दिलों के फासले हैं, क्या वो भी कम हुए हैं? ये जो हमारा ज़ात पात का ये रिलीजन्स का ये फासले भी कम हुए हैं, ये तो बढ़ रहे हैं। इसको इट वाज द आइडिया ऑफ दैट प्ले। उसके काफ़ी शो किए, भारती ने कोई 100 के ऊपर शोज़ जो है भारती ने किए उसमें, एंड शी इज़ वेरी क्रिएटिव
एक्टर, उसने उसको तो बस ऐसे बता दो, बाकी वो जो है काफ़ी कुछ आप खुद कर लेती। उसके साथ वो दूसरे राजीव ठाकर, राजीव ढींगरा, चंदन प्रभाकर और बहुत सारे को मैं ज़्यादा नाम लेना चाहता नहीं, क्योंकि मुझे जो याद है वो तो ठीक है, जिसका भूल गया वो दे तो They shouldn't feel bad. Okay. चंदन प्रभा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। एक सवाल है कि जो सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं वो जब आगे चले जाते हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में, वो उनका हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कपिल शर्मा हो गए, भारती हो गए, डू दे कम बैक टू यू? जब वापस आते हैं आपसे बात करते हैं? हाँ डेफिनेटली दे कम हियर। कपिल शर्मा कुछ दिन पहले ही 2-3 दफ़ा हमें पता भी नहीं था, रिहर्सल कर रहे थे और पीछे से आके वो बैठ के बीच में करने, वो दिन याद करने लगे। भारती तो वो हमारे वो जो है 15th जो ईयर सेलिब्रेशन, वो शी केम हियर again on 20th she was here. Now on Silver Jubilee, Kapil and Bharti, all they made a program to come here, but because of some special reasons वो लिंक नहीं टूटता सक्सेस के बाद भी? हाँ जी, वो लिंक कायम रहता है? नहीं, टूटता नहीं है, वो कायम रहता है जी। एंड दैट इज सेटिस्फाइंग टू यू एज एन दैट आर्टिस्ट? इज आवर अर्निंग। आप फासलों की बात करते हैं तो मैं अगले सवाल पे आती हूँ। अमृतसर जो है वो बॉर्डर टाउन है, राइट, और अमृतसर लाहौर को ट्विन सिटीज़ माना जाता था, राइट, और फासलों की बात आती है तो इसी बात पे आएगी कि सरहद एक फासला है। यस, राइट, यू हैड पीपल कमिंग अक्रॉस परफॉर्मिंग हियर फ्रॉम पाकिस्तान, वो रुक गया। तो कहने को तो ज्योग्राफिकली बहुत पास हैं, बहुत करीब हैं, लेकिन फासले बहुत हैं। हाँ, दे यूज्ड टू बी लॉन्ग बैक। ये तो मुझे पता है, एक प्ले हमने यहाँ पे किया था, एक थी नानी, उसमें एक तो जोरा सहगल जो मैंने देखा हुआ है, मुंबई से आए थे यहाँ, हाँ, यहाँ से मैंने वो देखा है वो प्ले। और उसके लिए वो कराची थे, उसकी सिस्टर आई थी, उनकी सिस्टर उजरा भट्ट, उजरा जी, उन दोनों ने यहाँ पे प्ले किया था, उसकी कई परफॉर्मेंसेस की थी। एट दैट टाइम ये जो दिस डिपेंड्स अपॉन political conditions. When political conditions of both countries are good, then these distance become shorter. When political differences are not that good, then first they come here, then they have to report in the police station, and then they will ask us, you give some guarantee, certification, etc. And that's a very difficult job for us, because we can't certify a person that so वो जो distances हैं वो बढ़ जाते हैं, वो फिर आना कम हो गए, अब तो बंद हो गए हैं। आप अमृतसर के ही रहने वाले हैं या आप भी लाहौर वगैरह जाते थे पहले? नहीं, मैं लाहौर नहीं गया, अमृतसर में ही मैं यहाँ पे ही रहता था। वो अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं, उनका वो अजोका थिएटर जो है वो तो बॉर्डर क्रॉस करने से सबसे पहले तो वो नाटशाला में वो दे यूज टू परफॉर्म, देन दे यूज टू गो टू दिल्ली, आगरा एंड इन राजस्थान आल्सो, जयपुर, दे यूज टू गिव परफॉर्मेंसेस ओवर देयर। जी, वो करीब बंद सा हो गया है वहाँ पर, जो इट यूज़ टू बी वेरी वाइब्रेंट। मैं उनसे मिली भी हूँ जो यहाँ पे आते थे, यहाँ परफॉर्म करते थे। आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, देयर वाज दिस लेडी हु वाज वेरी एनर्जेटिक, मदीहा गौहर, मदीहा जी, मैं उनसे इस्लामाबाद में मिली थी, एंड दे यूज टू, आई थिंक इट वाज हर, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट वो बहुत आती थी यहाँ पर और उनका ट्रूप आता था। मैं उनके ट्रूप के लोगों से भी मिली थी इस्लामाबाद में, और वो जब बंद हुआ तो देर आर मैनी पीपल हु से कि पोएट्स, राइटर्स, ये सब जब people to people contact होता था, the relationship was better. Yes. Do you feel that that is a casualty of deterioration in international relations between the two? Definitely. ये जो कल्चरल रिलेशंस हैं ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं political, how the political conditions are there. जी, I know there was one
every year they used to come on 14th of August to celebrate this independence. They used to come here, and once many judges, there was one High Court judge, they came here in Punjab Natshala, they came. And there was one small girl child with a वो जो है उनका हाई कोर्ट का जज था. आई जस्ट आस्क कि आप ये छोटे से बच्चे को कैसे ले आए. वो कहते कि ये हमारे एक रस्म है. रस्म क्या बोलते हैं आप उसको? ट्रेडिशन है कि जहाँ हमने सुलह करनी होती है किसी के साथ, तो हम अपनी बेटी को वहाँ लेकर जाते हैं. एंड इतना इमोशनली वो लेकर आया अपनी छोटी बच्ची को कि हम आपके साथ जो है वी वांट टू हैव पीस विद यू. इट वाज वेरी टचिंग फॉर मी. I know we brought the teddy bear especially for her, and we gave to that baby. There used to be good programs. It's also said that in this city, it's gone through so many waves of terrorism, separatist movement. So for anything to thrive, like theatre, like films, it gets hiccups. बीच में रुक जाता है. एक creative pursuits के लिए there is a need for peace. अगर हर जगह नाकेबंदी होगी, सब कुछ होगा, तो फिर it doesn't give that scope. Definitely. Because ये जो है आर्ट है, जो creative things है, these all depend upon political conditions. अगर वो अलाउ ही नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते. ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं. ये दोनों गवर्नमेंट्स जो पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो ये तो बिकॉज अदरवाइज द कल्चर इज़ द सेम, लैंग्वेज इज़ द सेम. सो मैनी इवन देयर मैनी वो जो है जैसे बुल्ले शाह, दे डिड वन प्ले हेयर बुल्ला, वो काफ़ी उसको यहाँ पे भी उसको माना जाता है. भगत सिंह, उन्होंने प्ले लेकर आए. भगत सिंह जो है वो भी यहाँ पे जो है वहाँ हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान वाले कभी सोच भी नहीं सकते होंगे, लेकिन दे परफॉर्म्ड हियर लाइक दिस. सर बट स्लोली एंड स्टेडीली वहाँ पे जो लोग कहते हैं कि द लैंग्वेज इज़ ऑल्सो डाइंग आउट, क्योंकि जो लोग स्कूल में जैसे पंजाबी नहीं सिखाई जाती, इट्स उर्दू. राइट. देयर इज़ नो स्क्रिप्ट तो था ही नहीं. Yes. यहाँ पे at least script is there. The only way language is surviving in Pakistan is when parents speak to their children. Yes. और अब वो बच्चे जो हैं पंजाबी में वापस जवाब नहीं देते, वो उर्दू में बोलते हैं. Right. धीरे धीरे Urdu has taken over, and in other parts of the country, when you try to make one language the only language, then what happens is Dari, Saraiki, all these, and Pashto, ये सब धीरे धीरे कम होती जाएंगी. उर्दू ही बढ़ जाएगा. Unlike in India, where Punjabi is taught in schools, Punjabi, the script is there, Gurmukhi is there, and बच्चे भी वही लैंग्वेज बोलते हैं. बड़ों के साथ भी थोड़ा बहुत हिंदी होता है, लेकिन पंजाबी is very vibrant as a language. I differ a little bit. अच्छा. Because the language, as you told about their Urdu language and those other Pashto language and all that. हाँ जी. सिंधी है. ये जो है ये कम हो गई है. ऐसे ही पंजाब में ये नहीं हम कह सकते कि पंजाबी इट्स इम्प्रूविंग, इट्स वेरी वाइब्रेंट. एक्चुअली जो पंजाबी है ये तो बहुत कम हो गई है हमारी फैमिलीज़ में. हमारे जो भी है यहाँ पे इवन जो स्कूल्स भी है, ये वो दे फील प्राउड इन सेइंग दिस स्कूल इज इंग्लिश मीडियम. यहाँ खालसा स्कूल इंग्लिश मीडियम. हाँ, लाइक दैट. एंड इवन द चिल्ड्रन दे डोंट स्पीक पंजाबी एट होम. अच्छा. And now
only one language is coming, that is English, अच्छा, on both sides. okay. Yes, now they are having one language. और what do you English. think should be done for preservation of the Punjabi language? कैसे करना चाहिए? मतलब अगर ऐसे languages die out कर जाएंगी, हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में जो है वो हमारी डाइवर्सिटी, वेदर इन लैंग्वेज, फूड, कल्चर, डांस, आर्ट, हमारी जो कल्चर है वो डाइवर्सिटी पे ही कायम है कि हम That's right. you know, so what should be done by Punjab to preserve its culture and to foster its culture कि वो और बढ़े? वो तो ये लैंग्वेज जो है, इसको ये हम किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते. वो ये है कि लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज में जैसे पंजाब है, पंजाबी, इसमें अच्छी स्टोरीज लिखी जाएं, अच्छे प्लेस हों, जैसे अच्छे सॉन्ग्स हो, अच्छा जो है कल्चर हो, तब अपने आप जो वो लैंग्वेज वो उसको प्रोग्रेस करती है, वो बढ़ती है. जो ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि ऐसे इतना इंजेक्शन लगा दो तो हो जाएगा. ये तो लैंग्वेज ऐसे ही है कि अगर हम उसको अपने जो इवन साइन बोर्ड्स हैं, दूसरे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो पंजाबी कर रखें और ऐसे करें तो उससे अच्छा होता है. जी, आपने 1998 में नाटशाला स्टार्ट किया था. Right. तो उस टाइम देयर वाज नथिंग अदर देन थिएटर प्रोबेबली एंड फिल्म्स. अब Right. क्या है कि OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, आप नेटफ्लिक्स yes. देख लेते हैं, Yes, कुछ yes. और कर लेते हैं. तो थिएटर को सरवाइव करना इस दौर में क्या क्या दिक्कतें होती हैं? एक्चुअली जो थिएटर है, लाइव थिएटर है जो ये, इसका कोई कंपटीशन नहीं है इसके साथ, OTT और फिल्म्स और ऑल दीज थिंग्स. एक्चुअली दे आर सपोर्टिंग ईच अदर. जी, अगर थिएटर अच्छा थिएटर होगा तो थिएटर से ये जो थिएटर इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर एक्टिंग. थिएटर की जो एक्टिंग है, ये थिएटर से वो कोई भी आर्टिस्ट है वो एक्टिंग यहाँ से सीखता है. हम तो जस्ट 1 मिनट के लिए बता देते हैं कि ये दिस इज थिएटर आर्टिस्ट. उसको जो है, उसका जो एक्सप्रेशंस है, उसकी जो क्राफ्ट है, उसका क्वालिटी है, दैट इज सर्टनली बेटर देन जो अदर फिल्म्स एंड OTT एंड अदर थिंग्स. दे सपोर्ट ईच अदर. And live performance is altogether a different art. Yes. So do you feel that there is no threat to theatre? No, not at all. Not They are at- supporting. Okay, it's a kind of symbiotic relationship. एक जो है वो दूसरे के को support करता है. support Yes, करता yes. है. हाँ, Especially जो दूसरे है वो थिएटर के लाइव परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस देखी नहीं होती, और वो फिल्म्स वगैरह वो पूरा सब जानते हैं. जब वो देखते हैं ना हमारे वो थिएटर में आके, तो वो रिपेंट कि हो हमने तो ऐसे लाइफ ख़त्म कर दिया, अब तो ये तो देखा नहीं है. तो लाइव परफॉर्मेंसेस का जो नशा होता है वो अलग ही चीज़ है. अलग चीज़ है वो. दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट. सो डू यू थिंक दैट आज के जो युवा आर्टिस्ट हैं उन्हें भी वही जुनून है जो जैसे आपने 90s में या 2000s में जो यूथ को देखा था? Yes, that is there. It's very interesting. It's very encouraging. We are very near to ये यूनिवर्सिटी. जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं they come to पंजाब नाटशाला जैसे कोई सुबह डे शुरू करने से पहले हम अपने मंदिर या गुरुद्वारा में जाते हैं और वो उसको वहाँ मत्था टेक के और फिर जाते हैं. ऐसे वो आगे ऐसे करते हैं. then it is very touching. and they want to what do they come to you and say that they want to go to Bombay and इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, कि या they have this urge to be part of the theatre scene in Amritsar? Yes, they want to do theatre. And they know about that this theatre, what live performance, they can't earn much from the live performance, but at the same time they know that they can be successful only if they perform here on the stage. सर, पीयूष मिश्रा का एक इंटरव्यू मैं देख रही थी और वो कह रहे थे कि कैसे थिएटर में
it takes out of you a lot. And there's Manoj Bajpayee and there are so many of these actors. वो सब कहते हैं कि when they are working in theatre, it's like they're consumed by it completely, and उसमें पैसा नहीं होता. So Right. they kind of, and many of them become, they get struck with leftist ideology. सब Right. कॉमरेड बन जाते हैं, वो Right, अपने right. फैमिलीज को छोड़ देते हैं, वो दे बिकम सो इन्वॉल्व्ड इन थिएटर दैट इट टेक्स अवे एवरीथिंग फ्रॉम देम, एंड Very सडनली right. दे रियलाइज कि कुछ मतलब दे हैव नो फैमिली लाइफ, दे हैव नथिंग, they've lost everything to theatre. Right. ऐसा क्या है थिएटर में जो इट टेक्स सो मच आउट ऑफ यू? व्हाट इज दैट magnet? Only successful artists, it's not just any earning. A good painter, he's not a good painter because he's earning, because he was interested in earning, that's why he started. जी. Actually, that is something they get some inner satisfaction. Here in performing before the audience, performing on a stage, it's altogether different feeling. When you see that your audience, it's giving response to you, and no film, no TV program can give that satisfaction. क्योंकि ये सारे जो जिनके नाम मैंने आपको बताए, ये सारे जो थे वो दिल्ली में, या फिर अनुपम खेर की बात करें, NSD, ये सब दिल्ली में आर्ट सीन में थे, थिएटर सीन में थे. और फिर कोई बॉम्बे से आता है, शेखर कपूर हो या कोई और, आके बोलता है कि कितनी देर तुम ये करते रहोगे और अपना पेट काटते रहोगे, तो आप बॉम्बे आ जाओ. फिर वो बॉम्बे चले जाते हैं, बट देयर फर्स्ट लव स्टिल स्टेज थिएटर. वेरी राइट, वेरी राइट. अब भी यहाँ पे ए फ्यू डेज बैक यहाँ पे जो हमारे नाट्यशाला में जी. बॉम्बे से परफॉर्म करने आए वो एक रूही बब्बर, शी इज गुड आर्टिस्ट. राज बब्बर's daughter. Raj Babbar's daughter. Nadira Babbar. And Nadira Babbar. वो She Nadira also- Babbar was a fabulous theatre artist. Yes, she performed here जी. so many times. जी. And Rajat Kapoor, जी. he came Again a good theatre person. 3-4 days back. He जी. came here. जी. And he says that whenever I come here, I will perform on the stage. And he does that, and people love him. तो वो लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना और कैमरे के सामने परफॉर्म perform करने करना में अलग अलग बात है. बिल्कुल. This तो is- क्या ट्रेनिंग अलग होती है थिएटर में और फिल्म्स के लिए जो एक्टिंग स्किल है? ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग तो जो स्टेज पे ट्रेनिंग होती है, जो लाइव परफॉर्मेंस की होती है. दूसरी जो ट्रेनिंग है वो एक्चुअल वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती. पहले के जो थिएटर आर्टिस्ट थे, जैसे नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, ये Yes. सब they were from theatre. they went from theatre into films and they got remarkable success. और मैंने शबाना जी का एक इंटरव्यू देखा, वो भी थिएटर की थी. Yes. एंड उन्होंने कहा कि जब उन्हें कमर्शियल सक्सेस मिलता था तो वो कमर्शियल करती थी, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में जो थिएटर आर्टिस्ट थे वो सिर्फ फ्री में भी करते थे. yes. बहुत सा थिएटर, बहुत सी फिल्में वो करते। फ्री में करते थे फॉर द सेक ऑफ द आर्ट. आपके पास भी ऐसे आर्टिस्ट आते हैं? यस, हमारे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अमृतसर में भी आर्टिस्ट हैं. दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट. अभी हम फ्यू डेज बैक हमने एक विजय तेंदुलकर का प्ले यहाँ पे किया है, बेबी. उस प्ले में जो एक्टिंग है, इट्स ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड. वो उसकी जो वन आर्टिस्ट जसवंत मिंटू, द अदर द लेडी आर्टिस्ट घई, वो दोनों के जो परफॉर्मेंसेस वो किसी भी फिल्म के आर्टिस्ट से कम नहीं होंगे. और दूसरे आप भी है. पीपल विलिंग टू पे मनी, कि पैसे दे के टिकट खरीद के फिर आके थिएटर देखे? यस, हम तो वो टिकट पे करते हैं, थिएटर टिकट पे. फ्री नहीं करते हम. और स्पॉन्सरशिप की कोई दिक्कत नहीं होती? स्पॉन्सरशिप के लिए हम बोलते ही नहीं. अभी तक हमने कभी वो पर्ची लेकर वो गए नहीं किसी के पास कि भाई हम वी वांट सम डोनेशन और समथिंग लाइक दैट. हाँ. Not at कॉर्पोरेट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि अगर थिएटर को एक्सपैंड किया जाए और कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप आ जाए तो द यूथ इन दिस सिटी वुड नॉट गो. मतलब डर तो यही लगता है ना कि नशे की तरफ चले जाएं, बार्स में बैठे रहें, लड़ाइयाँ करें, झगड़े हों, क्लेश और बढ़े. इससे तो अच्छा अगर क्रिएटिव परस्यूट्स में ज़्यादा ध्यान दें
तो won't it be better for corporates to get involved in this? यस दे शुड, हाँ? दे शुड। ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ हमने ये जो बच्चे हैं, ये आज का जो ज़रूरत है जिस थिएटर की, हमने पीछे यहाँ पे वर्कशॉप की, 3 months वर्कशॉप। उसके लिए जो स्पॉन्सरशिप थी उसकी कुछ लेकर उसको तैयार किया, और उसका पर्पज़ था कि हमने ये, क्योंकि सब्ज़ बाग मीन्स कि अब जो टाइम चल रहा है, अब वो जो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इसमें द विनर इज़ हु इज़ द बेस्ट सब्ज़ बाग प्रोड्यूसर। वो जो सुहाने सपने दिखाए, सुहाने सपने, जो सुहाने सपने बेटर दिखा सकता है। ये नहीं है कि हु इज़ कॉम्पिटेंट, who is more educated, who is hard working, it is not all that. The winner is कौन सुहाने सपने दिखा गया, तो he is the winner. आप जो सब्ज़ बाग की बात करते हैं और पॉलिटिशियंस की बात करते हैं जो हर 5 साल सब्ज़ बाग दिखाते हैं और उस पर वोट लेते हैं, पॉलिटिक्स में जो है, सी द थिंग इज दैट फॉर थिएटर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, कि very आप important. खुल के अपनी बात कह पाएँ। वो जहाँ पर ज़बरन बोलने का जो फ्रीडम है उसके अगर कर्ब्स लगाए जाएं तो वो बोलना नहीं जाता, फिर वो थिएटर कैन नॉट प्रॉस्पर इन दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। वेरी राइट। डोंट यू फील? यस, आप अभी बात कर रहे थे ना वो जो हु इज़ द विनर, उसमें ये भी है, इट्स ए स्टायर। ये ऐसे है, ये जो विनर वो होता है जिसकी पूंछ, टेल, जिसकी पूंछ सबसे लंबी हो, ही इज़ द विनर। और वो पूंछ मीन्स वो बोलते हैं कि ये जो है ना, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वो एक जंगल में सभी एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स, वो इकट्ठे हो जाते हैं। वो बोलते हैं, एक फॉक्स है, वो कहीं सिटी में जाके देख लेती है भाई यहाँ पे, तो वो उनको बता रही है कि एक और भी प्राणी है इस धरती पे, और उसको आदमी बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं। वो जो है, उन्होंने डेमोक्रेसी ला रखी हुई है, तो हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। फर्स्ट इसके ऊपर मैं थोड़ा इसको जी बताइए। इस पे है कि वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ये पहले वो जो लॉयन है, वो हु इज़ द किंग, ही सेज हाउ द मैन इज़ बेटर देन अस, how you say that man is more civilized. We are more civilized. You go to the forest city, you will find everywhere there is lot of वो क्या गंद, कूड़ा, ये क्या कुछ पड़ा। वो कहीं आपने उनकी हवा, वो पोल्यूशन देखी, वहाँ पे कितना गंदा पानी चलता है। हमारे यहाँ क्या है, एवरीथिंग। वो कहते हैं कि आप हमारे फॉरेस्ट में अगर एलिफेंट्स को भी जाना है, चींटी को भी जाना है, वो भी एक लाइन में जाते हैं। और यहाँ ट्रैफिक कैसी है, हम वी हैव गॉट रिवॉल्विंग स्टेज एंड व्हाट वी डू, वी शो देम। वो अभी एक बात करता है, वो आपके नाट्यशाला में रिवॉल्विंग स्टेज है। हाँ, वो दिखा देते हैं कि ट्रैफिक है एक साइड पे, जो फॉरेस्ट के जानवर हैं वो तो सीधे जा रहे हैं, और जो है वो एक दूसरे को गाली दे रहा है, कोई ऐसे है ट्रैफिक में कर रहा है। वो गंद है, उसको कितना एक जगह पे वो दीवार पे लिख के, यहाँ पे तो पंजाब में तो अक्सर लिखा होता है, देखो कुत्ता पेशाब कर रहा है, और नीचे आदमी कर रहा होता है। एंड डॉग सेज सी यू आर कॉलिंग दिस सिविलाइज्ड, आई एम मोर सिविलाइज्ड देन हिम। आई एम नॉट डूइंग दिस जॉब, ही इज डूइंग, एंड ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज कुत्ता। एंड लाइक इट वाज सो द it is very interesting. It's a long play and so many things. Okay, interesting. So democracy is not necessarily progress. Yes. Then they get confused. How they elect then? Their leader. It's natural. This is the person जो powerful होगा, the most powerful होगा, या जिसका जो ब्रेन है वो सबसे अच्छा उसका ब्रेन है वो होगा। नो, नॉट एट ऑल। वो बनता है जिसकी पूंछ लंबी होती है। अच्छा, वो कहते हैं ये हाउ मैन इज नॉट हैविंग टेल। मैन नहीं, एवरी लीडर इज हैविंग टेल। विदाउट ए टेल यू कांट बी ए लीडर। क्यों? क्या पूंछ लंबी मतलब? सबकी लंबी होगी। वो जो सब लोग हैं ना, वो
वो जितने लंबे ज़्यादा लोग लग जाते उतनी लंबी पूँछ हो जाती अच्छा, लोगों की पूंछ, अच्छा, ओके, दैट्स व्हाट यू मेंट, है। यस, ओके, हाँ, वो कहते हैं कि यहाँ ब्रेन का नहीं है, यहाँ पूँछ का सवाल है। हाँ, जितने लोग लग गए पीछे, जिसके पूछ वो पीछे लगाने के लिए उसने सब्ज बाग दिखाना, हाँ, सब्ज बाग से उसकी पूँछ बड़ी हो जानी, पूँछ बड़ी हो गई, वो लीडर बन जाएगा। तो आपने सटायर के थ्रू आपने बहुत कुछ कह दिया जो अखबारों में एडिट पेज में होता है, जो ज्ञान बांटते हैं एडिटर्स, उसकी जगह आपने सटायर में बहुत कुछ कह वो दिया। एंजॉय करते हैं लोग उसको, हमने उसको आगे और भी बहुत कुछ बता दिया, लेकिन उसको बहुत एंजॉय करते हैं उसके, हमने अभी थोड़ा ही शो किया, बिकॉज अगेन दिस स्टेज जो लाइव परफॉर्मेंस है, इट्स नॉट ए प्रॉफिटेबल जॉब, and we could whatever we could afford, we have done that. But you don't think that money should come in big corporate money is No, corporate money, we are not getting corporate money, we are but just, would you welcome it if the state gives it or if corporates give it? yes, definitely. ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि जैसे ये जो सारे नोटेड थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो दे डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ कॉर्पोरेट्स पुटिंग इन मनी, बिकॉज दे फेल्ट दैट उससे वो इंडिपेंडेंस निकल जाती है थिएटर की। अगर स्टेट फंडिंग हो जाती है तो स्टेट के अगेंस्ट आप बोल नहीं सकते, अगर कॉर्पोरेट फंडिंग होती है तो कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट आप बोल नहीं सकते। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एंड कॉर्पोरेट्स वर कंसिडर्ड रॉन्ग सिंपली बिकॉज ये सारे लेफ्ट लीनिंग हुआ करते थे थिएटर आर्टिस्ट। You are very right. You are very right. Whatever you have told, it's absolutely correct. Because the man who is supporting that theatre, the artist, actually first वो जो थिएटर की क्वालिटी है वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। अगर परफॉर्मर को ये पता हो कि जो व्यूअर है, जो देख रहा है, जो उनकी ऑडियंस है, दे आर नॉट पेइंग फॉर हिज एक्टिंग, then he can't be that serious. And there is some so-called leaders or directors. Some people, they come, they get money from the government or from some corporate, and they give very little to the artists. They keep big chunk with themselves, and then you can't think of a good quality. Only theatre can be successful and of good standard only if just like movies, if the person who is watching, he is paying. When the performer knows that the man who is watching him, he will pay, then he will definitely give best possible performance for that. Audience is king? Audience is king. Definitely audience is king. अब्रार साहब, 2021 में आपने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि यंग आर्टिस्ट को ट्रेन करना, और आप निःशुल्क ये सेवा कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए कि आपने ये क्यों स्टार्ट किया। वो इसीलिए कि वो जो आज का सिस्टम है उसका, हमने वो सब्ज़ बाग प्ले का भी आपको बताया ना, वो सब्ज़ बाग भी उसी में ही एक पार्ट ऑफ दैट था। वो ऐसे जो प्लेस तैयार करने जो कि जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें जो कुछ भी है गलत हो रहा है, जो को हम ठीक नहीं समझते, उसको स्टायर करते हैं और उसको एक फनी वे से लोगों के सामने रखते हैं कि ये दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ नॉट राइट। Sir, in conclusion, I just want to ask you about your city. This is your city. There's a lot of you around the world of people of Indian origin, as well as Indians also, who are worried about the state of politics, of secession talk, of Khalistan talk, of terrorism, all this returning to Punjab and especially to Amritsar. Are you worried at all about the future of Amritsar? आपको क्या खौफ है कि वो 80 के दशक के जो अलगाववाद और आतंकवाद का जो दौर रहा है वो इस शहर में फिर से लौट सकता है? हाँ, इट्स वेरी स्ट्रेंज एंड इट्स इंटरेस्टिंग दैट द पीपल आउटसाइडर्स, they are more worried about Amritsar. These Amritsaris, they don't have such problems. Here in Amritsar, people of all religions, they are living, and there are same colony. There is one BJP man, and other is Congressman, and the third one maybe a Akali or something. They
हार्डली एनीबॉडी मैटर्स। Nobody from आम आदमी पार्टी। मैं आम आदमी पार्टी ये वो भी भी बोल है। देती। जी। ये जो पॉलिटिक्स है ये तो बाहर से देखने से ऐसे कई लोग पूछते हो अमृतसर में आप कैसे रहते हैं, वहाँ तो ये होगा, यहाँ ये कुछ होगा। हमारे तो यहाँ पे थिएटर होता है, सब कुछ होता है, सब देखते हैं, सब है, ये है तो। और खाना पीना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना अमृतसरियों के लिए। सबको एक खाते हैं, सब कुछ एक जैसा होता है। एंड दे लाइक यहाँ का वो कुलचाज एंड दैट देयर आर सम स्पेशल थिंग्स फ्रॉम अमृतसर। एवरीबॉडी लाइक्स दैट। So you don't think that there is anything to worry about? Amritsaris still feel and Punjabis still feel that they're very much a part of the country and very much a part of the mainstream of this country. Yes, this is very true. This Amritsaris, they are the outsiders. I have written a play a few days back. Sorry, I'm just please say. written on Sakka Jallianwala Bagh, on that Jallianwala Bagh incident. Ji. Actually, behind that, the English people, they were very much upset to find that in Amritsar there are people, they are of different religions, but still they are one. They planned, they started Khalsa College, means just for Sikhs, Hindu college for Hindus, Islamia college for Muslims. They made these colleges from right, so that from the grassroots से ही दरारें आ जाएं। They tried their best, and it's when you go through the history, you are surprised to find these colleges. Those incidents, they used to be prepared there in Khalsa College, at the same time in Hindu College. And all these colleges and all these institutes, they used to do all together against English people. That's why that the O'Dwyer, who was the governor of this state, he was very much upset. He had a very वो उसके साथ बहुत अपने डीसी डेप्टी कमिश्नर वो मिस्टर इरविंग वाज डेप्टी कमिश्नर, ही वाज वेरी अपसेट विद हिम दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग इन अमृतसर, कि सब एक साथ रह रहे हैं, एक साथ अमन चैन से रह रहे हैं। हमने इतना किया है, आप यू आर अनएबल टू डू दिस थिंग दैट। वो उसकी जो एक्चुअल जो प्ले है, उसके पीछे जो उसकी हिस्ट्री है, उसका जो एक्चुअली क्या एटमॉस्फेयर क्या था, लोग कैसे थे, क्या है, वो दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। वो उस ज़माने की बात है जब अंग्रेज़ थे यहाँ पे, उन्होंने दरारें की। यस। आज के ज़माने में कौन ऐसे दरारें कर रहा है हिंदू, मुस्लिम, सिख और मुस्लिम्स के बीच आपके शहर में? सबसे पहले तो ये है कि जो अंग्रेज़ दरारें करके गए हैं, अभी तक हम उनको बंद ही नहीं कर सके अच्छी तरह। स्टिल अंग्रेज़ जो है वो दे आर वेरी क्लेवर इन दिस रिस्पेक्ट। दे मेड स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स जो है हिल स्टेशंस पे, जहाँ पे कुछ अंग्रेज़ लोग वहाँ उनके बच्चे पढ़ते थे, और कुछ जो उन्होंने जो दूसरे लोग थे यहाँ के हिंदू, सिख्स और मुस्लिम्स, उनके जो कोई किसी को राय बहादुर की, किसी को खान बहादुर की, किसी को सरदार बहादुर की वो डिग्री देकर उनके बच्चों को वो अपने अलग दे क्रिएटेड ए डिफरेंट क्लास। ऐसे ही उन्होंने सब क्लासिज्म जो क्रिएट किया है, वो आप आर्मी देख लें, आर्मी में सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, वो उन्होंने रिलीजन के नेम पे ऊपर ही रेजिमेंट्स बनाई हैं, कोई ऐसे नहीं बनाई कोई एरिया के ऊपर या कैसे किया। वो जो सिस्टम है अभी भी वो चल रहा है, वो अभी तक वो जो दरार है वो ख़त्म नहीं कर सके हम। Well, let's just hope that people like you who have seen, who have experienced, who have worked hard to stop these divisions in our society, Yes. people like you
continue your work and inspire other generations. Thank you, Brasa, for Thank you being very part much. of this. Thank you very much. It was very interesting. Thank you. Thank you. Thank you for watching or listening in to this episode. I hope, like me, you have learnt a little bit more about the city of Amritsar, about the culture of this city, about the culture of Punjab, the reason why theatre, art, culture, all these things are extremely important in a state like Punjab and in a city like Amritsar, which has witnessed trauma during partition and after that. Thank you for watching or listening. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.